السلام علیکم، گڈ مارننگ، رائز اینڈ شائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ منڈے ٹو فرائیڈے آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں 9 to 11، اور پھر سیٹرڈے سنڈے بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے سیٹرڈے سنڈے بھی آپ جو ہم پورے ہفتے میں جو ہمارا شو ہوتا ہے اس کے چوزن ونس جو سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو سیٹرڈے سنڈے کو بھی دکھا رہے ہیں۔ بیسٹ آف اس کو کہتے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بیسٹ آف کہتے ہیں اس کو، آپ کو نہیں پتا آپ چوزن ونس کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ شو آپ پسند کر رہے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آ رہا ہے۔ اچھا، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زہیب کچھ سولو سے کلے سے زہیب ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب آپ 5 6 7 8 دن کچھ ایسے ہی دیکھیں گے کہ پہلا گھنٹہ میں اکیلا آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا، اور 10 بجے سے پھر نادیہ 11 بجے تک ہم دونوں آپ کو جوائن کریں گے۔ آدھی سی چھٹیاں ہیں کچھ، ان کی آدھی ادھوری سی چھٹیاں ہم نے ان کو دی ہے، تو 10 سے 11 تک وہ جوائن کریں گی۔ بس 1 گھنٹے کی بات ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ مجھے پتا تھا کہ آپ پوچھنا شروع کر دیں گے اور یہ واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں، تو پہلے آپ کو بتا دوں کہ بھائی نادیہ 5 6 7 8 دن ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اچھا، آج کے شو میں بھی بہت کچھ ہمارے پاس ہے آپ کو بتانے کے لیے، بہت سی خبریں بھی ہیں، بہت سے تجزیے ہوں گے ان خبروں پر، اور کچھ انٹرٹینمنٹ کی باتیں بھی ہوں گی، کچھ ہیلتھ کی باتیں بھی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کی اچھا نہیں، پہلے یہ خبر دیتے ہیں جو کہ بڑی تشویشناک ہے، اور پے در پے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں۔ مختلف واقعات ہیں، اس کے عوامل مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بھارت میں دیکھا کہ کارڈک اریسٹ سے ایک ایکٹریس ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر کل یہ خبر آئی کہ پاکستانی ایکٹریس ہے حمیرہ اصغر، تو وہ اپنے فلیٹ میں ڈیفنس فیز 6 میں ان کا فلیٹ تھا، 4th فلور پر یہ فلیٹ تھا، ان کی لاش ملی، اور بتایا گیا کہ یہ 1 مہینے پرانی ان کی لاش ملی ہے۔ پڑوسی نے یہ گفتگو کی ہے میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ ادائیگی میں تاخیر ان کی تھی، یعنی وہ جو رینٹ پہ رہ رہی تھی اپنے فلیٹ میں، تو وہ اپنا رینٹ پے نہیں کر رہی تھی، تو جب بیلف وہاں پر پہنچا تو ناک کیا، دروازہ لاک تھا، خیر دروازہ توڑ کر جب اندر داخل ہوئے تو حمیرہ اصغر جو کہ ایکٹریس ہیں مردہ حالت میں وہ پائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ 1 مہینے پرانی ہے ان کی لاش ہے۔ اب کسی نے ان کو دیکھا نہیں، کوئی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، کوئی گھر والا نہیں تھا، کہاں سے ان کا تعلق ہے، کیا ان کے جو کولیگز ہوتے ہیں دیگر اس فیلڈ میں تو ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، تو 1 مہینے تک وہ ان کی لاش پڑی رہی ان کے فلیٹ پر اور کوئی ملنے نہیں آیا، کسی نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا، ان کا موبائل بند ملا تو کسی نے بتایا نہیں، کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا، تو ایک بڑی مسٹری سی یہ ہے کہ کیسے کن حالات و واقعات میں ان کی جان چلی گئی۔ تو اس پر ہم نے آگے چل کر بات بھی کرنی ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات کیوں اب تھوڑا زیادہ رونما ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ موسم کا بھی آپ کو احوال دے دیں۔ آج موسم کراچی میں بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں ہلکی بارش ہوگی، تو موسم کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کراچی میں موسم سہانا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، کالے بادل ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہیں کہیں ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تب بھی تھوڑی سلائٹ ڈرزل ہوئی، پھر اس کے بعد رک گئی۔ پنجاب کی بھی صورتحال یہی ہے، پنجاب میں بہت تیز بارش ہے، سوات اور دیگر علاقوں میں اب سیلابی صورتحال سے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ سکھر بیراج میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ درمیانے درجے کا سیلاب رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو موسم کا احوال روزانہ ہی ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے موسم کی ہم بار بار بات کیوں کیے جا رہے ہیں، بار بار آپ کو کیوں بتایا جا رہے ہیں، تو پتہ ہی ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ریڈ الرٹ جاری کیا ہے این ڈی ایم اے نے، اور بہت ہی ہائی الرٹ پر ہے انتظامیہ اس وقت، کیونکہ سیلاب کی صورتحال، اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی اس میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بارشیں ہوتی ہیں، مونسون بارشیں معمول سے زیادہ ہوتی ہیں یا نہیں۔ کل جو ہماری بات ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا شو، کہ 2-3 معاملات ہیں۔ ایک تو مونسون بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہیٹ ویو کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ موسم جو ہے اب ایک عجیب سی صورتحال ہے، موسم کی ایکسٹریم جا رہا ہے، ہیٹ ویو بھی وہاں پر ہے، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم مونسون بارشیں ہیٹ ویو کی بھی ہے، تو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پانی آ رہا ہے، سیلابی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، تو ڈبل جپنڈی سے کہہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہ بار بار بات کریں کہ انتظامیہ مستعدی کے ساتھ اپنا کام کرے، اور لوگوں کو جو ڈپریشن میں لوگ رہتے ہیں، نشیبی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کو ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ تو اس پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہی رہیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اب بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی جانب، اور آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد کی مدد نے ایف آئی اے کی درخواست پر 27 معروف یوٹیوب چینل بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے
یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے یوٹیوب چینل بلاک کرنے کی درخواست پر یہ سماعت کی ہے. ایف آئی اے کی درخواست پر عدالت نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف مواد کے حوالے سے ایف آئی اے نے 2 جون کو انکوائری شروع کی. عدالت نے انکوائری آفیسر کو سنا اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا. حکم نامے میں کہا گیا کہ شواہد کی بنیاد پر عدالت سمجھتی ہے کہ معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں یوٹیوب کے آفیسر انچارج کو حکم دیا کہ مذکورہ 27 چینل کو مکمل طور پر بند کرے. تحریری حکم نامے کے مطابق مطیع اللہ جان، صابر شاکر، عبدالقادر، حیدر مہدی، عمران ریاض، اوریہ مقبول جان، مخدوم شہاب الدین، وجاہت سعید خان، عبدالقادر، ساجد گوندل، اسد طور، صدیق جان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف، نیا پاکستان اور ڈیلی قدرت کے یوٹیوب چینلز بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ریاست مخالف مواد کو لے کر تو یہ موقف ہے ہی، ریاست کا بھی موقف ہے اور سب کا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. جو ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کو کسی صورت یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اور 5th جنریشن وارفیئر میں خاص طور پہ ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تمام ہی ممالک میں ریگولیشنز ہیں، تمام ہی ممالک میں قواعد و ضوابط ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. بہت جگہ تو بہت اسٹرکٹ رولز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں، لیکن اگر ریاست کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی اور پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے گی اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اگر ہمارے جو دشمن ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی یا وہ اسٹرینتھن ہوں گے اس سے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سینئر صحافی و تجزیہ کار عامر جا صاحب نے ہمیں جوائن کیا تو ان سے ذرا اس پر انالیسز لیتے ہیں اور یہ بھی ہم جانیں گے عامر جا صاحب سے. سر السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پہ. وعلیکم السلام جناب. اچھا سر مجھے بتائیں کہ دیکھیں پہلے تو ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ریاست مخالف مواد ایف آئی اے نے رپورٹ کیا، ایف آئی اے نے اس پر تحقیقات کی، جو مقامی عدالت ہے اس نے فیصلہ بھی دے دیا. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ یعنی پرنسپلی تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے ریاست کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے یا کسی چینل سے کوئی غلط مواد جا رہا ہے تو. دیکھیں زویب، اس میں ایک بات تو ہے نا کہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ فیک نیوز جو ہے وہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. اسی طرح کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جناب کہتے ہیں ریاست مخالف اگر کوئی مواد وہ کر رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے، ایسی چیزیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر یقیناً کچھ نہ کچھ کارروائی ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے کارروائی کی گئی ہے کیا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ہماری جو بات ہوئی ہے جن لوگوں سے جن کے چینلز بند کیے گئے ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی پہ فرض جرم عائد کرتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کانٹینٹ میں کیا کیا کہتے ہیں خامیاں تھی، کیا خرابیاں تھی، کہاں پر آپ نے جھوٹا کانٹینٹ کریٹ کیا، اور آپ اس کے اوپر ایک بڑا فول پروف کیس جو ہے بنا کر اس کے اوپر پیش کرتے ہیں. یہاں پر ایسا نہیں ہوا. یکدم یک لفظ جو ہے 27 چینلز کو جو ہے بند کیا گیا. ان کے بارے میں ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب آپ پہ کیا ہوا. ون سائیڈڈ انکوائری ہوئی ہے. یعنی کہ ہوتا ہے کہ جب آپ انکوائری کر رہے ہوتے ہیں اور آپ فرض جرم عائد کرتے ہیں تو آپ کو پیش ہونے کی اجازت ہوتی ہے، اس کانٹینٹ کو آپ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. جب بھی کہتے ہیں کہ انصاف کرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تو لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے. میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ جی فیک نیوز از فیک نیوز اور اس کو بالکل برداشت نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو مینج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں لائبل ڈیفیمیشن لاز ہیں، کیا آپ نے ڈیو کورس آف لا جو ہے وہ پورا کیا ہے. آپ نے ایک دم کہا کہ جی یہ ریاست مخالف پروپیگنڈا ہے، تو آپ بتائیں نا کہ اس میں ایسی کیا بات تھی مجھے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں دیگر لوگ بھی ایجوکیٹ ہو سکیں کہ جی یہ ریاست مخالف ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت مخالف پروپیگنڈے کو آپ نے کہو کہ جی ریاست مخالف ہے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تو نہیں کہ جو ایک ڈسینٹ ہو، ایک لیجیٹیمیٹ وائس آف ڈسینٹ ہو، ڈسینٹ، بالکل وائس آف ڈسینٹ، بالکل بہت سارے ہیں جناب. جی اچھا اب مجھے یہ بتائیں، ابھی ہم چلے ریاست کو تو ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں نا، اس پر تو ہم کوئی اس پہ تو یہ پوائنٹ آف ڈیبیٹ ہے ہی نہیں، اس پہ تو ہم سب اگری کرتے ہیں اور جن کے بند کیے وہ بھی اگری کریں گے. اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے بات کرتے ہیں. یہ پیکا ایکٹ وغیرہ کہ کوئی کمپلین اگر کوئی متاثر ہو آپ کی خبر کی وجہ سے یا جو بات آپ نے کی ہے اس کا مجروح ہو رہا ہے، اس کا وقار مجروح ہو رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے. لیکن اب تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے اور اس کو اس میں لا کر آپ کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. تو ذرا اس کو بھی تو ہم اس میں بات کریں نا کہ پیکا ایکٹ اور یہ جتنی بھی ریگولیشنز آ رہی ہیں، آزادی اظہار، آزادی صحافت، بہرحال ایک تشویش تو ہے نا ہماری اس برادری میں اس کو لے کر.
पूरी इंडस्ट्री ने जो है पीका कवानीन को जो है, जिसको काला कानून कहा जाता है, उसको एक सबने मिलकर रद्द किया है। उसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री में, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री में जो है वो एक इत्तेफाक राय है और ड्रैकोनियन लॉ है। उसमें आपने इज़हार राय को जो है क्रिमिनल एक्ट जो है बना दिया है। वो माजी में ऐसा नहीं हुआ करता था। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जब इस पे डिफेमेशन लाइबल के कवानीन थे, उनको आप इफेक्टिव करते। आप जो है मतलब है कि बिल्कुल आप ये करें कि जिसने अगर फर्ज करें तौहीन किसी की हो और उसके ऊपर केस चलता हो, आप बिल्कुल उसके ऊपर डिफेमेशन केस करें, उस पर भारी जुर्माने आयद करें एक कानून के तहत, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप फॉलो करें। हमारे यहाँ तो ये हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ लग ये रहा है कि बिल्कुल जैसे नाराजनी की पंजाब असेंबली में पीटीआई के अरकान ने पंजाब में, और आपने कहा जी तौहीन हो गई और आपने उनको डिसीट करने का जो है कानून शुरू कर दिया, प्रोसेस शुरू कर दिया। तो आपका एक लग ये रहा है कि हुकूमत का जो है बड़ा जाबराना और बहुत ही डिक्टेटोरियल अंदाज हो गया है, और वही समझते हैं कि जी पाकिस्तान को सिर्फ डंडे के जोर पे चलाया जा सकता है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप चला ले, लेकिन बहुत अरसे तक और नहीं इसमें चला सकते। आमिर साहब नुकसान ये भी हो रहा है ना कि देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इसमें उन लोगों को भी एस्केप मिल रहा है जो वाकई इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, रियासत मुखालिफ बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, दुश्मन को फायदा पहुंचाते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बचने की जगह मिल रही है कि क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तो ये ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा, तो हमें भी विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो ये एक नुकसान भी हो रहा है ना ऑन द अदर हैंड। बहुत ही अहम नुक्ता उठाया। फर्ज करें कि आपने 27 चैनल्स को बंद किया, उसमें से मैं कहता हूँ 20%, 30%, कोई भी आप तादाद रखें जो कि मासूम है और जो जिनका कंटेंट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आपको बुरा लगा कि वो आप पे तनकीद कर रहे हैं, ठीक है। या फर्ज करें कि 90% गलत है और सिर्फ उसमें 10% जो है वो जो है वाकई उस शिकंजे में आते हैं, तो पता नहीं चला। आपने जब केस चलाया, फर्ज करें कि आपने एक चैनल के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, आप पहले फर्ज जुर्म तो आप आयद करेंगे ना, आप उसको कहेंगे, उसको बुलाएंगे, आप स्पेसिफिक जो है बताएंगे जी यही आपने गलतियां की। अब जो है पेमरा का भी अगर लेटर आता है, मैं मेन स्ट्रीम चैनल पे बात करूं, अगर वो नोटिस देते हैं तो उसमें बड़ी वेग बातें होती हैं कि जी फला चीज यूं नहीं हुई और आपने उसके खिलाफ फला काम नहीं किया। उसमें आप स्पेसिफिक्स में नहीं जाते कि आपका ये जुमला जो था काबिल गर्दन ज़दनी था, आपने ये चीज जो कही वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ थी। आप ऐसे जब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि कानून तो इसी तरह नाफिज होता है, वो ये तो नहीं होता कि जी मुझे जो है आमिर दिया की शक्ल अच्छी नहीं लगी और मुझे ज़ुहैब की किसी बात का लहजा अच्छा नहीं लगा तो मैंने कहा कि नहीं जनाब इन पर पाबंदी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, और आप इन दिस डे एंड एज आप ये पाबंदी चला भी नहीं सकेंगे बहुत अरसे तक। और वही बात है ना आमिर साहब, देखिए इसमें ये है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो मुल्की मफाद हम ये सुनते आ रहे हैं, हम भी, आप हमसे बहुत सीनियर हैं, आप भी सुनते आ रहे होंगे, अभी तक मुल्की मफाद स्पेसिफाई, हर किसी की अपनी डेफिनेशन है उसकी, जो हुकूमत आ रही है उसकी मुल्की मफाद की डेफिनेशन अपनी है। अब वो जर्नलिस्ट को वो ये कहते हैं कि ये जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि आपकी बाउंड्रीज ये हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक, तो हम तो कंफ्यूज हैं, अभी तक हमें यही नहीं पता चल सका है कि मुल्की मफाद क्या है और जर्नलिज्म विद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कहां तक खबर देनी है कहां तक नहीं देनी। ये भी एक डायलेमा है ना हमारे लिए अभी भी। ये बिल्कुल आपने एक और बड़ा अच्छा छिक्का मारा है कि वाकई मतलब है अपनी पसंद नापसंद पे आप जो मुल्की मफाद जो है बयान करते हैं, बल्कि मुल्की मफाद तब्दील हो जाता है। कल तक जो चीज जो थी मुल्की मफाद में थी, वो आपने आज जो कहा कि वो नुकसानदेह है, और जो नुकसानदेह था उसको आपने मुल्की मफाद में करार दे दिया। एक दिन आप स्याह को सफेद कहते हैं और अगले दिन जो है सफेद को स्याह कर देते हैं। तो ये चीजें जो है बिल्कुल एक कंफ्यूजन फैला रही है। फिर मेरा एक और सवाल है इसमें, जैसे तहरीक इंसाफ का चैनल है, बात यूं थी या तो आप कहें जी तहरीक इंसाफ जो है एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और उस पर पाबंदी है, तो फिर उसकी उस पर यूट्यूब पर भी पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन ये अजीबोगरीब डायकोटमी है कि वो जमात जो है जैसी भी हालत में पार्लियामेंट में भी मौजूद है, उसके नाम लेवा भी है, वो टीवी पर भी उसके लोग आते हैं, लेकिन आप कहते हैं जी यूट्यूब चैनल उसका बंद है। तो या तो आप एक पॉलिसी बनाए ना, अगर आप कहते हैं जी तहरीक इंसाफ नुकसान दे तो आप साबित करें अदालत में, उसके ऊपर पाबंदी लगा दें, उसकी हर चीज पर पाबंदी लगा दें। लेकिन आप यहाँ पर हलाल है वहां पर हराम है, ये नहीं हो सकता। और जब आप ऐसा करेंगे, लेकिन मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारे यहाँ बाज लोग जो हैं, हमारे यहाँ जो समाजी मीडिया पर जिस तरह की सहाफत कह लें उसको, एक कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जरतरीन सहाफत उसके कान कतरती है, हम इसको तस्लीम करते हैं। और देखिए जब हम आजादी की बात करें आमिर साहब, आजादी की बात करें तो दूसरा हम ये भी करेंगे कि आजादी का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है ना, यानी बात को कहने का तरीका क्या है, क्राफ्ट होना चाहिए ना एक जर्नलिस्ट के अंदर, बात बिटवीन द लाइंस बात करने का वो क्राफ्ट होना चाहिए। अब तो हम ये देखते हैं कि अगर आप तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर या किसी भी पॉलिसी पर,
تو وہ اتنی را ہوتی ہے کہ عام آدمی سے بھی بدترین الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہمیں آن دی ادر ہینڈ یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ایک تو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پھر جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جب پوری قوم ایک پیج پر تھی اور سب بھارت کے خلاف ہم اپنے اپنے محاذ پر نبرد آزما تھے, اس وقت بھی کچھ چینلز نے جو کہ لوگ باہر بیٹھے یوٹیوبرز پاکستان کو کرٹیسائز کیا اور پاکستان کے اداروں کو کرٹیسائز کیا. تو یہ تو کسی صورت اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ میں ہی سمجھتا ہوں. میں تو خیر بات کی ہوتی, میں تو ایبسولوٹ فریڈم والا آدمی ہوں. ہم جب طالب علم تھے کراچی یونیورسٹی میں تو میں ایک کتاب پڑھائی گئی تھی ایروپیجیٹیکا جو کہ ملٹن نے لکھی تھی 1644 میں, رائٹ. اور اس زمانے میں کتابوں کے اوپر لائسنس کا انہوں نے حکم دے دیا تھا اور کہا تھا جو ان لائسنس کتاب ہوگی اس کو جلا دیں گے. تو ملٹن نے بڑا اچھا آرگیومنٹ دیا تھا, وہ بہت سارے آرگیومنٹ سے پمفلٹ ہے وہ. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ کو سیاہ کو اجاگر کرنا ہے یا سفید کو اجاگر کرنا ہے تو اس کے سامنے سیاہ ہونا چاہیے. اگر سچ کو اجاگر کرنا ہے تو جھوٹ بھی ہونا چاہیے. بات کی ہوتی ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کہ جو 4 روزہ جنگ ہوئی اس میں آپ نے ایکس پہ پابندی اٹھائی تو پاکستان کا بیانیہ کتنی مضبوطی سے دنیا بھر میں گیا. اس میں اگر 2 لوگوں نے 4 لوگوں نے حماقت کی ہے تو کیا اس سے پاکستان کی صحت پہ کوئی اثر پڑا؟ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے, نیوکلیئر ریاست ہے, 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. اگر 99.9% پاکستانی جو ہیں وہ سر پیر کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو 2% اگر آپ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کو کرنے دیں. آپ میں اتنی برداشت قوت ہونی چاہیے کہ اگر وہ فرض کے تنقید کر رہے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کو ایکسپوز کریں. آپ بتائیں کہ جناب عامر جی آپ نے غلط بات کہی, اس کو ثابت کریں, آپ اس کو آرگیو کریں. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ لوگ خود بخود جو ہیں اس چیز کو نان سیریس لیں گے اور سیدھا چیزوں پہ چلے جائیں گے. اور مزید جب آپ پابندی لگا بالکل پابندی اس کا حل نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا حل نکالنا پڑے گا, چینلائز کرنا پڑے گا کہ بغیر کسی ثبوت کے, ایویڈنس کے آپ نے ٹیگ ایسی کر دیتے ہیں آپ یوٹیوب چینل میں جو کانٹینٹ ہوتا ہی نہیں ہے, پھر وداؤٹ اینی ایویڈنس الزامات لگا دیتے ہیں اپنے صرف ویوز کے لیے. یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا عامر صاحب, اس پیرائے میں رہتے ہوئے, پیکا کو مد نظر رکھتے ہوئے, تمام ریگولیشنز کو, حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابراہیم اکارڈ کے بارے میں آپ کیا, کیونکہ بات تو آپ سے کرنی بنتی ہے یہ بھی, اور پاکستانی پالیٹکس کی ہم بات کریں گے, تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں, یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ, اور اسلامی ممالک کا موقف کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو میں وضاحت کر بھی, آپ بتائیے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشلی یہ بات نہیں آئی ہے کہ اسرائیل سے انگیج کرنا ہے یا جناب ہم ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو رہے ہیں. ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا ہے. ابھی تک صرف ٹیسٹ بیلونز فائر کیے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی خواہشات کے تحت جس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور ان کا جو ایک آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہماری جو سب سے بڑا دشمن ملک ہے وہ تو بھارت ہے, اور بھارت سے ہماری ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے باقاعدہ کی, اور اس کے باوجود جو ہے ہم ابھی اپنی ہاکی ٹیم بھی وہاں بھیج رہے ہیں, حالانکہ وہ تو کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں بھیجتا, ٹھیک ہے نا, وہ پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا مرتکب ہو رہا ہے, تب بھی ہم لوگ کہتے ہیں آئیے بات کر لیں, میز پہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کشمیریوں پہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مسلسل ظلم کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں. تو ان کا ایک آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس ریاست سے آپ کا براہ راست کانفلکٹ ہے, آپ جب اس سے بات کر سکتے ہیں تو جس ریاست سے آپ کا, میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ مذہبی جذبات سے قطع نظر ہم بات کر رہے ہیں کہ جس اسٹیٹ سے آپ کا کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہے, اصولی آپ کی سپورٹ ہے فلسطینیوں کی, وہ کل بھی تھی, وہ آج بھی, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی رہے گی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اسرائیل کو انگیج کریں, ٹھیک ہے نا. اس پہ آپ نے دیکھا کہ کئی برادر اسلامی ملک جو ہیں, یونائیٹڈ عرب ایمریٹس ہوا, بالکل انگیج کریں, لیکن اپنے موقف پر وہ باقاعدہ طور پر قائم رہے, اور ابھی تک موقف پر قائم ہے. بالکل یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, اچھا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. اب ہماری یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اگر یہ بات کرتی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, اور نہیں, ہاں ایسا بالکل بات ہوگی تو بات بنے گی. بہت شکریہ عامر صاحب, وقت کم تھا, سوالات بھی بہت ہیں, لیکن یہ کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے. تو یہ جناب ہم نے بات کی ان یوٹیوب چینلز کے خلاف اور یہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال, اور اس پر کیسے اب اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے یا ایک ڈومین میں لایا جا سکتا ہے تاکہ مس یوز اس کا نہ ہو, اور ملکی مفاد پر جب کوئی بات آئے تو اس کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے تاکہ پاکستان کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو. آگے بڑھیں گے, ایک بریک لینا ہم نے رائزنگ شائن پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو واقعہ ہوا تھا بلڈنگ کلیپس کا, اس سے متعلق بہت اب متحرک ہو گئی ہے سندھ گورنمنٹ, انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے, کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, اور اب دیکھا جا رہا ہے, جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیسے یہ اقدامات کیے جائیں, پالیسیز بنائی جائیں تاکہ آنے والے وقت میں ایسے واقعات نہ ہوں. تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے سلسلے کو.
राइजन शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम बड़ी एक अहम यानी ऐसा मसला है जो कि कराची के शहरियों के लिए यानी इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ज़िम्मेदारी हमारी बुनियादी हमारी भी है कि आप जब कभी कोई प्लॉट लेने जाते हैं या कोई फ्लैट लेने जाते हैं, कोई ज़मीन लेने जाते हैं, तो पहले आप अथेंटिकेट करें कि क्या ये लीज़ है प्रॉपर्टी जो आप लेने जा रहे हैं, एनओसीज मिले हुए हैं, अथेंटिकेट किया गया एसबीसीए की तरफ से या नहीं किया गया है। होता यह है कि यानी कम पैसों में आपको कोई चीज़ मिल रही होती है, आप समझते हैं कि ठीक है, अपने जो कुछ भी आपने कमाया होता है वो लगा देते हैं उसमें, उसके बाद आप ही के लिए ये परेशानी का बायस बनता है कि बाद में पता चलता है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है। तो जब भी कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पहले देख लें कि आया ये लीगल तरीके से, और ये प्रॉपर्टी जिसमें आप रहने जा रहे हैं, अपनी फैमिली को रखने जा रहे हैं, ये फैसले इस तरह के नहीं है कि आपने कोई छोटी मोटी चीज़ ले ली है। ज़िंदगी में एक बार ये फैसला होता है, तो फिर ऐसा फैसला करें ताकि आपकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हो और आपको एक शेल्टर, एक घर मिले और उसमें आपकी नस्लें ज़ाहिर है वो आगे बढ़ें। लेकिन हुआ ये है कि कराची में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है, बहुत सी ऐसी लैंड है जो कि रेगुलराइज नहीं है, जो कि अथॉरिटी की तरफ से उनको एनओसीज नहीं मिले हुए हैं। काली भेड़ों की मिली भगत की वजह से वो प्रॉपर्टी सेल परचेज भी हो जाती है। फिर मखदूश इमारतों का एक बड़ा मसला है, 40-40, 50-50 साल पुरानी इमारतें हैं, बल्कि इससे भी पुरानी इमारतें हैं, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं और अपनी जान पर खेल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो लियारी का वाक़या हुआ है, लियारी में जो बिल्डिंग गिरी है, 27 लोग जान से गए इसमें। इसके बाद इंतज़ामिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इससे मुतालिक कंसर्न शो किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने भी हिदायत जारी की है इसको लेकर कि इस मामले को देखा जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन भी काफ़ी एक्टिव हैं, वज़ीर बल्दियात भी एक्टिव हैं, एक कमेटी बनाई गई है। तो लियारी में जो इमारत गिरी है, इस वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिश्नर कराची हसन नकवी को 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया और कमेटी में स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी डायरेक्टर एसबीसीए समेत दीगर अफसरान भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी इमारत के गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों का इसके साथ साथ तयन करेगी और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश की जाएंगी ताकि आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात ना हो। 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट मुताल्लिक़ा हुकाम को इस कमेटी को पेश करनी है। गुज़श्ता हफ्ते एक 5 मंजिला इमारत गिरी थी, ज़मीन बोस हो गई थी, जिसके बाद ये सारी एक्टिविटी हमें देखने में आई है। तो तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा अब्दुल्ला बलोच ने हमें ज्वाइन किया, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये कहिएगा, इस वाक़े के बाद से अभी तक क्या कोशिशें की गई हैं? कमेटी बना दी गई है, 48 घंटों में रिपोर्ट देगी, सर्वेज वगैरह हो रहे हैं, क्या कुछ सिंध गवर्नमेंट कर रही है इसको लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोएब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ है, ये इतना एक अफसोसनाक वाक़या है कि मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान इस पे जो है वो सोगवार है, क्योंकि ज़ाहिर है कि फैमिलीज थी, इतने लोग थे जो बड़े एक हादसाती तौर पे उनकी जान गई। और मैं तो खुद जाए वाक़या पे जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे मैं लियारी में खुद विजिट किया, मैंने देखा वहाँ पे सिचुएशन। तो देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो बिल्डिंग थी वो एक बहुत डेप्लोरेबल पोजीशन पे थी और उसकी कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, और उसके लिए वार्निंग भी दे दी गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से। लोकल बॉडीज जो डिपार्टमेंट है उन्होंने 3 महीने पहले वार्निंग कर दी थी कि ये कभी भी गिर सकता है। तो जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी कंडीशन बिल्कुल खस्ता है, उस पे आई थिंक लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और अब कुछ नाक़दीन ज़ाहिर है उनको पॉइंट मिल गया था, तो वो यही कह रहे थे कि भाई जब ऐसी कंडीशन थी तो उनको क्यों रहने दिया। अच्छा, अब हुकूमत अगर किसी को अगर घर से बेघर करेगी तो भी हुकूमत पे इल्ज़ाम आएगा कि भाई आपने क्यों बेघर किया है। तो हुकूमत तो नहीं निकाल सकती उनको घर से बाहर। जो लोग ऐसे बिल्डिंग्स में रह रहे हैं उनको वार्न कर सकती है, निकलना उनका काम है। नहीं, लेकिन जो लोग उनको रख रहे हैं, ये मुस्तफा साहब, इसमें ये सवाल पैदा होता है ना, इसलिए तनकीद हो रही है गवर्नमेंट पर कि जो लोग उनको रख रहे हैं, यानी रेंट ले रहे हैं, जो बिल्डर है, बिल्डर माफिया है, जो ये तामीरात करता है पहले कि 60 गज पे 80 गज पे मल्टी स्टोरी बना देना, मटीरियल भी खराब लगाना, 5-5, 6-6 फैमिलीज को किराए पे रख लेना, तो वो भी किसी मिली भगत से ही हो रहा है ना। वो ये सोचते हैं, एक तो मासूम शहरी है, उसे 40,000 की यानी एक फ्लैट 20,000 किराए पे मिल रहा है, तो वो तो आ जाता, ज़ाहिर है मजबूर है। ये तो इदारों का काम है ना कि इसको देखा जाए, मॉनिटर किया जाए।
آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ان بلڈنگز کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ابھی بن رہی ہیں، جو کچھ حالیہ سالوں میں جو ہے ان کی تعمیراتی کام ہوا ہوگا جی جی یا ان کی خستہ حالت ہوگی. یہ تو 1970s کی بلڈنگ تھی. ٹھیک ہے. تو اس دور کے بلڈرز تو وہ تو خود ہی سے پیچھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے خود ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ابھی ہم نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب یہاں سے کبھی بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو بہت پرانی بلڈنگز ہیں جہاں پہ میرے خیال میں سچویشن بہت خراب ہے، اور ان بلڈنگز کو اب ظاہر ہے گورنمنٹ ڈکلیئر کری، اور اب جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو ایک فاسٹ پیس پہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سی ایم صاحب نے کمیٹی بھی بنائی ہے اور وہ پرومپٹ ایکشن لے رہی ہے، اور ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے. ایک صحیح ڈائریکشن پہ، ایک مثبت ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے ہنگامی طور پہ جو ہے وہ جہاں جہاں ایسے ہمیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں چیزیں جن میں ریسنٹ کنسٹرکشنز بھی ہو رہی ہیں یا جو ماضی میں کنسٹرکشنز ہوئی ہیں جن میں جو انلیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا. جو مافیا ہے جو اس کو چلا رہی ہے ان کے خلاف بھی چیزیں دیکھی جائیں گی، کیونکہ وی کانٹ افورڈ ٹو لوز سویلینز اور سٹیزنز آف سندھ جن کی ظاہر ہے حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور وی اسٹینڈ بائی دیم. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم بری ذمہ ہو رہے ہیں، ہم سٹینڈ لے رہے ہیں، اور ہمارے سارے نمائندے بھی وہاں پہ موجود تھے، لوگوں کے ساتھ تھے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایسے واقعات آئندہ کبھی بھی نہ ہو. اچھا سر، کوئی ایسا اب تو سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، جی اب تو سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، ظاہر ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی ایسا سسٹم آپ بنائیں یا پورٹل بنا لیں کہ ایک عام شہری میرے جیسا یا جو ہمارے کیمرہ مین ہیں یا ہماری ٹیم ہے جو عام لوگ ہیں بالکل، وہ اگر کوئی پرچیز کرنے جا رہے ہیں یا رینٹل بیسس پر بھی لینے جا رہے ہیں تو وہ اس پورٹل میں لکھیں اس لوکیلٹی کا اور وہ اس کا ایڈریس لکھیں اور وہ پتہ چل جائے کہ اس کی کیا لیگل ریکوائرمنٹس پوری ہوئی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہوئی ہیں. کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتے آپ؟ کیونکہ یہ کنفیوژن ہے بہت شہریوں کے ساتھ، پراپرٹی خریدتے ہوئے بھی اور یہ بھی. جی زویب، سسٹم تو ہے لیکن اس کو مزید ایفیشینٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہوگا، آپ کے سامنے وہ آئے گا. اور اس پورے سینیریو کے بعد جو سب سے بڑی بات تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کچھ سکیمز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو سستے داموں جو ہے وہ آفر کرتی ہیں اور لوگ لے لیتے ہیں، اپنی جمع پونجی لگا دیتے ہیں، وچ از ناٹ فیئر. لوگوں کو گمراہ کرنا، کچھ جو آپ کے ہمارے جو بلڈرز ہوتے ہیں جو پرائیویٹ اپنا چلاتے ہیں، سارا کچھ بزنس چلاتے ہیں، اس طرح کر کے جب وہ عوام کو اگر کہیں نہ کہیں سے گمراہ کرتے ہیں تو اس سے ان کو تو وقتی طور پہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لاکھوں کا، کروڑوں کا فائدہ ہو جاتا ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں کچھ لوگوں کی زندگیاں اس پہ داؤ پہ لگ جاتی ہیں. تو حکومت سندھ کبھی بھی یہ ہونے نہیں دے گی، اور یہ کالی بھیڑوں کی ملی بھگت کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا. ایک ایسا واقعہ تھا کیونکہ کراچی از اے یوتھ سٹی. جی جی جی، یعنی یہ کہ کراچی از اے یوتھ سٹی، اٹس اے بگ میٹروپولیٹن سٹی. لوگ کراچی کو لاہور سے کمپیئر کرتے ہیں، میں نے کہا ایک کراچی کے اندر 3 لاہور آ جائیں گے. کراچی اتنا بڑا شہر ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے، پورے پاکستان سے لوگ رہنے یہاں پہ آ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، ریسورسز آپ کے لمیٹڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی چیزیں بہت اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینج، بٹ اسٹل سندھ گورنمنٹ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا پوائنٹ نہ رہ جائے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسا اور حادثہ ہو. تو ہماری طرف سے ریسٹ ایشور the سندھ گورنمنٹ از اسٹینڈنگ بائی اٹس پیپل، اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں ہنگامی طور پہ. آج بھی جو ہے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. منسٹر صاحب بھی اس پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ کی نظر اس پر ہوگی کہ متعلقہ اداروں کے لوگوں کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کوئی بھی لیگل کام ہو، کسی بھی قسم کا ہو، مخدوش عمارت میں کسی کو ٹھہرانا ہو یا پھر کنسٹرکشن ہو. دیکھیں اس پہ تو پرومپٹ ایکشن جو سب سے ان کے اس ادارے کے جو ہیڈ تھے ان کو ہی سسپینڈ کر دیا گیا. دیٹ شوز دیٹ اور ان پہ کمیٹی بٹھا دی گئی ہے کہ اب وہ انکوائری کرے گی. تو وہ جہاں جو ہیں ان پہ تو 0 ٹالرنس ہوگی. اگر کوئی بھی اس میں انوالو ہے تو اس پہ کاروائی ہوگی اور سخت کاروائی ہوگی. اور جو اس میں اگر کچھ جو بلڈرز بھی ہوں گے جو انلیگلی کام کر رہے ہوں گے ان پہ بھی کاروائیاں ہوں گی ڈیفینیٹلی، کیونکہ نو بڈی از ابو دی لا. اور اگر اس طرح کر کے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے تو مطلب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی اس پہ تو سخت ایکشن ہوگا. اور ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک تو ایس بی سی ہے، لیکن سر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت جگہ ہم نے دیکھا کہ نئی کنسٹرکشن ہوئی، اپارٹمنٹس بن گئے، ملٹی اسٹوری بن گئے، ایلیگل بنے، اور اس کے بعد ان کو کنیکشنز بھی مل گئے. مطلب یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری. لوگوں کے لیے لوگ اسی سے ہی اتھینٹیکیٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ دیکھو، وہاں لے لو اپارٹمنٹ، وہاں پانی بھی آ رہا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، ہاں جی بجلی کا بل بھی آتا ہے، گیس بھی آتا ہے.
अब मैं तो समझूंगा ना कि ये तो इस पे I understand what you're saying. ये चीजें हैं, ये लिंक्ड कुछ चीजें हैं जिनको भी एड्रेस करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली लोगों को जो अट्रैक्शन दे के बुलाया जाता है उस तरफ और लोग फिर वहां जाके वो चीज खरीद लेते हैं, तो आई गॉट योर पॉइंट. तो उस पे वो चीजें भी खत्म करनी है और करेंगे ताकि इस तरह की फॉल्स अट्रैक्शंस लोगों को ना मिलें और लोग भाग के जाके वो ऐसी सस्ती दामों को ऐसी चीज ना ले लें जो कल को उनकी जान के लिए जो है वो नुकसानदेह हो. बिल्कुल. तो ये एक इट्स और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यकीनन आप बना रहे होंगे, इस पे सोच रहे होंगे कि जब इनको खाली कराया जाएगा इमारतों को, क्योंकि दर्जनों इमारतें होंगी ना पूरे कराची में, जब ऑपरेशन होगा तो मखदूश इमारतें भी, इलीगल तामीरात भी, तो लोग यकीनन बेघर होंगे. तो उनको रिहेबिलिटेशन उनके और उनको कहीं और सेटल कराने के लिए ये भी कोई प्लान ज़ाहिर है मद्देनजर होगा आपके सामने. बिल्कुल ये भी कंसिडर हो रहा है कि डेफिनेटली कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनमें कभी भी खुदा न खासा कोई चीज हो सकती है, तो उस पे वहां से लोग इवैक्यूएट करके कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा. देखिए, सिंध हुकूमत ने लोगों को घर देने के जब वादे किए तो घर दिए भी. वो आपने देखा है जब सैलाब में सिंध में लोगों के घर उजड़ गए थे तो सिंध हुकूमत, सैलाब केपीके में भी आया था, सैलाब पंजाब में भी आया था, लेकिन सिंध हुकूमत ने मालकाना हुकूक देके पक्के मकान लोगों के हवाले किए. वो आपके सामने इट्स एविडेंट. तो सिंध हुकूमत इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है. अगर ऐसे कोई वाकयात होते हैं या ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है जिसमें हमें अकोमोडेट करना हो लोगों को, बहुत शुक्रिया. तो सिंध हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि लोगों को सारी सहूलियत. हमारी उम्मीद यही है कि ऐसा हो. मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वर्मान सिंध हुकूमत हमारे साथ थे और वही बता रहे थे. अब देखना ये कि कमेटी क्या सिफारिशात देती है और क्या उन पर अमल दरामद होता है नहीं. एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद नादिया खान भी आपको ज्वाइन कर लेंगी और हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि कराची में कचरा उठाने वाला जो एक मसला है ना, उठता है नहीं उठता और लोग बड़ी बड़ी परेशानी होती है लोगों को, तो इस पर हम बात करेंगे. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हेडलाइंस ब्रेक है और वापस आएंगे हम राइजिंग शाइन. वेलकम बैक. ये हुआ है फ्रेम कंप्लीट अब. और आपको पता है कि लोग पूछ के मोबाइल जरा मैंने अपने पास रख लिया था और वो लोग पूछ के नादिया खान कहाँ है, नादिया खान कहाँ है, इधर उधर. भाई ये आ गई आपकी ना, पूछे भाई क्या कहाँ है नादिया खान. बस मुझे समर वेकेशन चल रही है ना, तो मैंने 1 घंटे की छुट्टी ली है रोज शो से. जी हाँ, कभी फोन पे आपके साथ हम मुखातिब होंगे या कभी इधर होंगे. मैं 1 घंटे के लिए, तो थोड़ा सा कुछ 8 दिन का है, एडजस्ट कर लें प्लीज. हाँ, 2-3 दिन तो ऐसे 1 घंटा फिर ये हो जाएगा एडजस्ट. समर वेकेशन पे हूँ. हाँ बिल्कुल, और मिस भी करना जरूरी है ना भाई. ये वैल्यू भी जरा बदल जाती है. ये बड़ा जरूरी. अच्छा जी, अच्छा, जरूरी तो बहुत कुछ है काम करने का, और ज़रूरी ये भी है कि कराची में सफाई सुथराई होनी चाहिए. हम ही चाहते हैं, हम सब जो भी मुल्क से बाहर गए हैं या फिर देखा भी है, अब तो ग्लोबल विलेज है दुनिया, यूट्यूब के जरिए भी आप ऐसे पहुंच, तो आप देखते हैं कि दीगर ममालिक और शहर बड़े साफ सुथरे होते हैं. खासतौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं दुनिया भर के, उन पे फोकस किया जाता है. आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो पहले तो आप उसकी सफाई को नोटिस करते हैं कि यार इनका निजाम कैसा है, साफ है शहर, तो आप एकदम, आपको ना मोहब्बत से हो जाती है उस शहर से. अच्छा, हम अपने मुल्क में जब शहर की सफाई की बात करते हैं वो सिर्फ ईद करते हैं, वो भी बकरा ईद. उसके अलावा टीवी पे कभी सफाई की बात नहीं होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. दीगर ममालिक में एक टाइमिंग है, शाम बस हुई है और मेट्रोपॉलिटन का अमला मुतहरिक हुआ है और रोडें एकदम साफ, ये वो, और कहीं कहीं तो रोडें धुलती भी है. कराची में भी पहले धुलती थी, एक जमाना था रोडें हमारे, बिल्कुल जब पानी होता था. जब पानी होता था. खैर, लेकिन अब इनमें सबसे बड़ा जो किरदार है, बहुत बड़ा किरदार, जो मेजर किरदार है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे का है. ठीक है, कि वो किस तरीके से अपना किरदार अदा करिए, क्या उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं. क्योंकि कराची में जो फीडबैक लोगों से आता है वो ये कि पूरे कराची की कुछ जगहों पर फोकस किया जाता है, वहाँ सफाई होती है, और बहुत सी जगह ऐसे अनअटेंडेड सी लगती हैं वो जगह. खासतौर पर गुंजानाबाद इलाके जो हैं, डेंसली पॉपुलर जो ऐसे इलाके हैं, जो लालू खेत का इलाका है, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, लाडी, मलीर वगैरह जो इलाके हैं, यहाँ फोकस कुछ कम दिखाई देता है. तो ये सारे सवालात हम करेंगे. आम दिनों में बात करनी चाहिए ताकि कि जरा वो भी थोड़े से अलर्ट हों और जिक्र होता रहे. ईद के ईद नहीं, तो आज हम ईद का दिन तो नहीं है, लेकिन हम सफाई की बात करेंगे. बिल्कुल सफाई की बात करेंगे. सफाई निस्फ ईमान भी है. तो हमें ज्वाइन किया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MD तारिक अली निज़ामानी साहब ने. तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग शाइन में वक्त दिया. कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? My pleasure.
शुक्रिया आपका कि आपने मदू किया Thank और you. मुझे अभी तो शुक्रिया कर रहे हैं फिर हाँ, ऐसा ना हो माइंड कि ना कर जाए थोड़ी देर माइंड ना कर बाद जाए, सही कह रही हैं आप। क्यों क्यों बुलाया आपने इसलिए ताहिर साहब बुलाया। बस इसीलिए बुलाया जो आप भी देखते होंगे, लोगों से बात होती होगी आपकी, बातें तो सख्त हैं, क्या जी करें। जी जी सख्त बातें हैं, लोग मुतमईन नहीं, क्यों, क्या वजह है? आगाज इस तरह करते हैं हम गुफ्तगू। एक्चुअली जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इनेकाद जो हुआ था वो 2014 में एक्ट पास किया गया और उसका मकसद ये था कि जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट था उसको ट्रांसफॉर्म करना था मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में कि बिफोर 2014 इस चीज़ को DMCs और लोकल काउंसिल्स देख रही थी, तो उसमें उनके पास एक आउटडेटेड मशीनरी थी और बहुत सारे दूसरे इश्यूज थे। तो उस ज़माने में हार्डली एज अगेंस्ट 10 से 12,000 टन जो जनरेशन है कराची की, एज अगेंस्ट दैट वो 3 से 4,000 टन कलेक्ट हो रहा था और शिफ्ट हो रहा था। तो ये ज़रूरत महसूस की कि एक इदारा सेंट्रलाइज इदारा बनाया जाए जो कि इसको साइंटिफिकली हर चीज़ को देखे, इस हवाले से कि पूरी दुनिया में वेस्ट को वेस्ट नहीं बल्कि एसेट ट्रीट किया जाता है, तो उसके पीछे पूरा सारा सिस्टम बनाया जाता है। तो एक सेंट्रलाइज को वेस्ट नहीं, एसेट, Asset. ये क्या कैसे करते हैं आप? जी वो इस तरह से अब मैं आपको आप आइडियल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चलाने के लिए आपके लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, अवेयर सोसाइटी, जिस तरह से लास्ट ईयर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हर इदारा हर वीक इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वेस्ट मैनेजमेंट वो सेशन होल्ड करेगा। सेम थिंग वाइल अज्यूमिंग द चार्ज ऑफ MDSSWMB ऑन 1 जनवरी मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी मैंने ऑन बोर्ड लिया, उन्हें लेटर लिखा कि और उन्हें मॉडर्न सर, ये तो वेस्ट मैनेजमेंट बुकिश बात सिस्टम हो गई की मैंने ना। ये तो बड़ी, ओवरव्यू दी और उसके साथ उसके बेनिफिट्स भी मैंने बताए। तो एक तो आपके लिए अवेयर सोसाइटी चाहिए, दूसरी आपके पास डिसिप्लिन इदारे चाहिए। डिसिप्लिन इदारे के ये काम ऐसा है कि दैट नीड्स टू बी डन टाइमली। आप और बेहतर है कि नाइट आवर्स में ये किया जाए तो इट्स क्रिएट एन आइडियल सिचुएशन। तो इस तरह से और ये कहा जाता है कि आपके जो है डिसिप्लिन जो है आपके 80% मसाइल का हल है। तो सर, ये तो बुनियादी उसूलों की बात मैंने कर रहे हैं ना, अपने ये इदारे तो थोड़ी सी बुकिश बात कर रहे हैं ना। हम तो वो बात करें आप कि ये जो बात करें, हो क्या रहा है? ग्राउंड रियलिटी अच्छा, है। मैं reality की हम बात नहीं बिल्कुल ग्राउंड अब रियलिटी। सर देखें जैसे 2 बातें कि एक तो आपका जो है गार्बेज की कलेक्शन और उसका डिस्पोजल, ये 2 मसले हैं। अब जब कलेक्शन की बात आती है, आप ये देखें कि मैं कह रही हूँ 40 साल पहले भी बाहर के मुल्कों में खास गाड़ियां थी जो कि कलेक्शन करती थी गार्बेज का, आज भी उससे बेहतर गाड़ियां timely इनके करती पास कि मतलब, और इसमें एक बंदा इन्वॉल्व है। गाड़ी ने कचरा उठाया, अच्छा जो कचरा है जो गार्बेज है कंप्रेस हो गया, उसी वक्त कंप्रेस हुआ, उसके बाद आगे चल दिए, एक भी चीज गिरती नहीं। हम आज भी ओपन गाड़ियों में कचरा जो है बंदा उठाता है ऐसे कि आधा गिर जाए, ठीक है, या पीछे कतर 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 आता जाए, ठीक है, आधा फेंक देते हैं, आधा डाल देते हैं। कौन खुली गाड़ियों में कचरा कलेक्ट करता और है? उठाता भी टाइमली नहीं है ना, 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन पहले बाद। तो इस पे कहना, ये तो मैं 40 साल पहले से देख रही हूँ। मैडम मैं उसमें आपको दूं कि हमने Collection. हमारे पास जो है कंपैक्टर है, साइड लोडर है, हमारे पास बाय लॉर्ज मॉडर्न मशीनरी है। मैं थोड़ा सा उसका आपको ओवरव्यू दे दूं कि एक जो है इसमें जो हमारा मैकेनिज्म है उसमें जैसे कि कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी से थ्रू डोर स्टेप कलेक्शन हैंड कॉल लेबर के थ्रू, क्योंकि वो गलियां तंग है जहां से वो कचरा लाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है और इस तरह से आपको हम दिखा सकते हैं एनी टाइम यू आर वेलकम। हम आपके साथ आपको प्रैक्टिस होता हुआ जो कराची का जो 70% हिस्सा है उसकी प्राइमरी कलेक्शन की जिम्मेदारी हमारे उसमें में फॉल करती है। और अब वो मैकेनिज्म का जिक्र हो रहा था, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं प्लस जो है कमर्शियल एरियाज़ है वहाँ बिन मैनेजमेंट के थ्रू कलेक्शन होती है, और जो सेटल्ड इलाके हैं वहाँ पर हमारी 4 लेन गाड़ियाँ मूव अराउंड कर रही होती हैं, कलेक्ट कर रही होती हैं और उसको शिफ्ट हो रहा होता है। इसका मतलब ये कि कचरा ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा फेंका जा रहा है, आप यानी आप कह रहे उठा भी रहे हैं आप, लेकिन अच्छा, कचरा बदस्तूर नजर आ रहा है। हम सामने की बात करते हैं, यहाँ से अगर आप निकलेंगे तो आएगा बलोच पुल। बलोच पुल के लेफ्ट साइड पे जहाँ से आप DHA के लिए टर्न करते हैं, मैं सालों से देख रही हूँ कि वो जो खाली जगह है वहाँ सिर्फ कचरा है, वहाँ प्लास्टिक बैग्स,
कचरा, गार्बेज कोई नहीं उठा रहा। सर आप समझ रहे हैं ना मैं जिस टर्न की बात कर रही हूँ, बलोच पुल से पहले जब हम लेफ्ट टर्न यहाँ से अगर हम जाएं सीधा जब हम डीएचए की तरफ टर्न करते हैं, वो प्लॉट तो मखसूस ही सिर्फ मेरा ख्याल डिस्पोजल के लिए ऑफ गार्बेज। मैडम मेरे ख्याल में ये कंटोनमेंट की का एरिया मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूं कि जब हमने टेक ओवर किया था कराची में, एक्चुअली जो डीएमसीज का था वो टीडीपी बेस्ड सिस्टम था, मींस किचरा कुंडिया बेस्ड सिस्टम था। तकरीबन कराची में 3000 किचरा कुंडियाँ थी, ठीक है, और हमने जो अपना सिस्टम मॉडर्नाइज एट सोर्स कलेक्शन सिस्टम स्ट्रेटजी से हमने कलेक्शन शुरू की। एट सोर्स कैसे? वो एट सोर्स मैंने जिस तरह से आपको ब्रीफ किया कि बिन मैनेजमेंट के थ्रू और डोर टू डोर कलेक्शन के थ्रू और जो कच्ची आबादी हैं वहाँ पर हैंड कार्ड लेबर के थ्रू के डोर स्टेप से कलेक्शन को वहीं से ले डोर से, हाँ वहीं से जहाँ से जनरेट हो रहा है वहीं हुआ नहीं उस पे अमल शायद, क्योंकि लोग डंपिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं लोगों ने खुद ही अपने। मैं उसमें थोड़ा ब्रीफ करूं, एक्चुअली क्या है कि हम 3000 टीडीपी थी, हम 2500 हम एलिमिनेट कर चुके हैं, रिमेनिंग 500 जो है वो भी ग्रेजुअली वो एलिमिनेट हो रही हैं। दूसरा चैलेंज असल में यहाँ पर यह है कि इलीगल एस्केवेंजिंग का, एस्केवेंजर जो है वो सम पॉकेट्स में वो कलेक्शन कर रहा होता है और उसकी लोकल जो वहाँ पर सोसाइटी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से उनका कोलैबोरेशन होता है, तो वो वहाँ से जो कलेक्ट करता है देन ही हैफेजर्डली वो थ्रो करता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, हम जब 4 साल पहले जब हम मोहम्मद अली सोसाइटी में हम डोर टू डोर कलेक्शन शुरू करने जा रहे थे, तो वहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स थे उनका ये व्यू था कि प्राइवेट फर्म्स हमारे घर से कचरा कलेक्ट करती है और वी आर हैप्पी विद दैम, टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है, और हम आपका सिस्टम अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे। तो मैंने कहा ओके यू गो बाय दैट प्राइवेट सिस्टम। मैंने कहा सिर्फ आप ये सवाल पूछें कि आपसे जो कचरा लेते हैं उसके बाद वो डिस्पोज ऑफ कहाँ करते हैं, ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं। फिर सेकंड डे दे केम बैक टू अस, उन्होंने कहा कि वाकई दे वर हैविंग नो एनी इन डिस्पोजल सिस्टम। मैंने कहा वो आप दे आर ओनली इंटरेस्टेड in extracting recycled material, remaining waste वो आगे जाके आपके नाले में फेंक देते हैं। they don't shift it at end disposal that is GTS और LFS पे वो शिफ्ट नहीं होता है। सही अब हो रहा है मैडम, हमारे हमने सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है जिसपे मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप हमारी ऑफिस का भी विजिट करें। वहाँ आप और सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं, उसमें एक स्टाफ अटेंडेंस वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि कौन सा स्टाफ किस टाइम पे आया और उसने और किस टाइम पे उसने चेक इन चेक आउट किया। ये बताएं मुझे, पूरे कराची में आपने जो रिसर्च की कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा फोकस, ओल्ड सिटी एरिया अगर आप चले जाए ना, सदर के इलाके, ठीक है, आए चंडीगढ़ के जो उस तरफ के इलाके हैं, वो सारे मतलब आप समझे लाइट हाउस से भी आगे निकल जाएं, बहुत कचरा है वहाँ, बहुत गंद है, तो उन इलाकों को मैं आपको बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी रोज आप और हम किसी भी टाइम पे वी हैव मेड साउथ डिस्ट्रिक्ट एज एन आइडियल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आपको मैं आपको बल्कि हम डेली वंस आफ्टर क्लीनिंग पूरे उस रोड की जो कि मॉडल रोड्स डिक्लेयर की गए हैं, मैं उनको उसकी डेली अर्ली इन द मॉर्निंग में जो स्टेक होल्डर हैं, जहाँ पर उसमें कमिश्नर ऑफिस भी स्टेक होल्डर है, हम उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं। मैं कौन से एरियाज पे फोकस करते हैं? सर ये जिसको आप बता रहे हैं जो मॉडल से रोड्स हैं, कौन से एरियाज हैं साउथ के? मैडम वैसे तो हम हमारे लिए पूरा साउथ मॉडल है, पूरा कराची मॉडल समझना है ना कि साउथ हम किस एरियाज की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ रोड्स मॉडल रोड डिक्लेयर किए हैं, जिसमें अब्दुल्ला हारून रोड हो गया, जिसमें जो है आया चंद्रीगढ़ रोड हो गया, और ये मेरीन पिरामिडो रोड है, वो जो 3-4 रोड्स वैसे तो वी आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रोड्स। और इस तरह से आप ईस्ट में शाहरा कैदीन हो गया,
آپ کے پاس شہید ملت روڈ ہو گیا اور آپ کا شارع فیصل ہو گیا. آپ اس پہ میں آپ کو ارلی ان دا مارننگ میں آپ کو ان تینوں کی جو ہم وہ تو ہم خود بھی رینڈم جو ہے نا اپنے کورسپونڈنٹ کو بھیج کے بالکل کروا لیں. if you ask I shall be آپ کو sharing بتا کے نہیں ہم جائیں گے, آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اچھا مجھے بتائیں کتنا کچرا جنریٹ ہوتا ہے اور کتنا آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں ابھی تک, یعنی کیا اس کا ڈیٹا کیا ہے؟ اس طرح سے کہ کراچی میں جو ابھی ریسنٹ جو اسٹڈیز شو کر رہی ہیں کہ تقریباً 16,000 ٹن جنریشن ہو رہی ہے, 16,000, اور اس میں سے جو ایریا ہمارے ٹیریٹری لمٹس میں آتا ہے وہاں پر 12,000 ٹن کی جنریشن ہو رہی ہے, اور ریمیننگ جو 4,000 ٹنس ہیں وہ اس میں 6 کنٹونمنٹ بورڈ آ جاتے ہیں. اور اٹھا کتنا لیتے ہیں آپ, ڈسپوز آف کیسے ہو جاتا ہے وہ, یعنی ہاں میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جو ہمارا میکینزم ہے ایٹ سورس کلیکشن کا, جو ٹرائی کمپیکٹر کے تھرو 12 تو نہیں اٹھا پاتے ہوں گے آپ, 12,000 ٹن جنریٹ ہو رہا ہے اور وہ اسی وقت ڈسپوز آف ایسے تو نہیں ہوتا ہوگا. وہ پر ڈے کی جنریشن 12,000 ٹن ہے, اور آلموسٹ اتنی مور دین 11,000 ٹن ہم کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو ذمہ داری ہے وہ الائڈ ایجنسیز کے ہیں جن کی ایریاز میں وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. شروع میں سوال پوچھا تھا کہ جو گاڑیاں کچرا اٹھا رہی ہیں وہ کھلی والی گاڑیاں کیوں ہیں؟ میڈم وہ بڑا اچھا آپ نے پرٹیننٹ سوال کیا. موسٹلی ہماری گاڑیاں کھلی گاڑیاں نہیں ہیں. ایکچولی الائڈ ایجنسیز نے ابھی تک اپنا سسٹم اپ گریڈ نہیں کیا ہے. جیسے کہ آپ پنجاب چورنگی کی طرف سے جائیں گے تو وہ آپ کو بہت بڑی ایک ٹی ڈی پی ملے گی جو کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ایک ایریاز میں فال کرتی ہے. تو اس طرح سے اب الائڈ ایجنسیز کو بھی اپنا سسٹم ایٹ سورس کلیکشن سسٹم پہ لانا پڑے گا. اور سر یہ کہ ڈسپوز کہاں ہو رہا ہے, یہ سارا کراچی کا ویسٹ کہاں جا رہا ہے؟ میڈم یہ اس میں سیکنڈری کلیکشن سسٹم اور ٹرچری کلیکشن سسٹم مینس کہ وہ ہمارے پاس ہے. 6 GTSs ہیں جس میں سے تھرو ورلڈ بینک اسسٹنس 2 اس سال ماڈرن ہو کے ہمارے سسٹم میں کلابن ہو جائیں گی, 2 اگلے سال. نہیں بتائیں کہاں ڈمپ کہاں کرتے ہیں, سارا کچرا جاتا ہے کہ آسان سے لفظوں میں بتائیں جو مجھے سمجھ آئے. پہلے وہ GTS پہ آتا ہے, اسمال وہیکلز جو ہوتی ہیں. اچھا اس کے بعد آپ فائنل ڈمپ کہاں کرتے ہیں, کہاں گرا دیتے ہیں آپ؟ اور دیئر آفٹر وہ جو 2 ہمارے پاس لینڈ فل سائٹ ہیں جس میں سے ایک سینیٹری انجینئرنگ لینڈ فل سائٹ ورلڈ بینک سویپ فنڈیڈ سویپ پروجیکٹ کے تھرو وہ بننے جا رہی ہے, وہ بھی ہمارے سسٹم جو ہے ابھی وہ کہاں جا رہا ہے, ابھی کچرا کہاں جا رہا ہے کچھ سالوں سے؟ میڈم فرسٹ آف آل وہ GTS پہ جا رہا ہے اور فردر وہاں سے شفٹ ہو رہا ہے. گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن وہ کہاں ہے میڈم؟ یہ آپ کے جو یہ امتیاز سپر اسٹور کے بیک سائڈ پہ ہمارا, یعنی آپ کے پوائنٹس ہیں وہاں پر ماڈرن GTS اچھا, وہ مطلب بڑی سی جگہ آپ ہوتی ہے اس میں آپ ڈمپ کر کے پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ مجھے بڑا, میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کچرا جاتا کیا ہے, جاتا کہاں ہے, فائنل ڈمپنگ اس کا کیا ہے ڈیسٹینیشن, اتنا جب کچرا اکٹھا ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ ایکچولی میڈم اصل میں یہ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف آرٹ انفراسٹرکچر کی کمی ہے. آپ شنگائی اور کراچی کی پاپولیشن آپ سیم دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کے گوگل کر کے دیکھ لیں ان کے پاس انفراسٹرکچر. اچھا سر, یہ جو گاربیج ہے کمپریس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کمپریس ہو کے آپ ڈمپ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں اتنا جو گاربیج ہے دنیا بھر میں اس کو کمپریس کر دیتی ہے جو گاڑی لے کے جا رہی ہے تو وہ اتنا رہ جاتا ہے. کیا آپ اس کو کمپریس کرتے ہیں یا جتنا والیوم ہے اتنا ہی ڈال دیا؟ میں جو جاتا ہے وہ ٹرائی کمپیکٹر میں وہ کمپریس ہوتا ہے, کمپریس ہو کے وہ شفٹ ہو رہا ہے. کمپریس کہاں ہوتا ہے؟ جو گاڑیاں اٹھا رہی ہیں وہ تو نہیں کمپریس کر رہی میڈم. وہ جو بنس ہیں, بنس کو کمپیکٹر اور سائڈ لوڈر اس کو لفٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ کمپریس کر رہا ہوتا ہے, اور جو کچرا ٹرائی کمپیکٹر میں جاتا ہے وہ بھی کمپریس ہو رہا ہوتا ہے. ایکچولی ابھی میں نے ایکچولی اس کا حل جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس جس طرح میں نے شنگائی کی ذکر کیا, وہاں پر انفراسٹرکچر اچھا خاصا نمبر آف وہاں پر ماڈرن GTS, ہمیں ماڈرن GTS کی طرف آنا پڑے گا. مانسون آ گیا ہے, بارشیں آ گئی ہیں اور اس سے پہلے بڑھ جائیں گے. ہاں جی, تو اب اس میں اس کو لے کر کیا اقدامات آپ نے کیے انتظام؟ جی ایکچولی میں مونسون کے حوالے سے کہوں گا کہ ہمارا کام پری مونسون اور پوسٹ مونسون زیادہ ہے. وہ اس حوالے سے کہ اگر اگر پورا سال جو آپ
जनरेटेड गार्बेज है और वो एफिशिएंटली आप कलेक्ट कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो वो उसकी मिसहैंडलिंग नहीं होगी, वो सीवरेज सिस्टम में नहीं जाएगा। तो हमारा पूरा फोकस होता है कि पूरे साल जितनी जनरेशन हो रही है वो एफिशिएंटली वो कलेक्ट हो और डिस्पोज ऑफ। और हमारा सिस्टम आज भी आप अगर शो कर रहा होता है कि वी आर वेरी मच कंप्लायंट। हम पूरा साल 10 से 12,000 टन कलेक्ट भी कर रहे हैं। और क्या बताएंगे कि अब बारिशें जो होंगी उसमें आपको वो अजियत का सामना नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, पानी खड़ा नहीं होगा, ये आप कुछ गारंटी दे सकते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह सब इदारे काम कर रहे हैं। अब KMC की जिम्मेदारी जो है 44 बड़े सीवरेज सिस्टम है जिनकी अपकीप क्लीनिंग की जिम्मेदारी KMC की है, वो भी उनकी क्लीनिंग का काम हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी है, साथ में हमारी भी जिम्मेदारी है। लोगों को भी बिल्कुल कहेंगे कि ये जो चिप्स खा के बच्चे पैकेट फेंक देते हैं ऐसे ठक नीचे, आपको भी ख्याल करना चाहिए अपना। कुछ जो शहरी होने की जिम्मेदारी आप भी पूरा करें। फेंक देते हैं आप। अब मतलब अब जो भी इदारे हैं वो एक एक पैकेट के पीछे तो आपके नहीं आएंगे ना, आपका भी फर्ज जो है कि आप वो उसको पूरा कर रहे हैं नहीं, क्योंकि टुगेदर वी कैन मेक पाकिस्तान ग्रेट एंड क्लीन आल्सो। हम सब की तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया स्टूडियोज में। सवाल ज़ाहिर बहुत थे, लोगों के जहनों के सवाल थे। बस सर आखिरी जाते जाते प्लीज जरा डस्टबिन जो है ना वो ज्यादा रखते हैं इधर उधर। मैडम आपका बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पार्किंग में मैडम 4,000 से ज्यादा हमारे बिन्स चोरी हो चुके हैं जिनकी हम FIR भी लॉन्च कराई हुई है। तो सर जमीन के साथ उसको जोड़ दें, नट से ना स्क्रू से टाइट कर दें। बिल्कुल, ये जो चरसी है ना, ये जो उठा के ले जाते हैं ना, गटर के ढक्कन छोड़ते हैं ना, ये चीजें इनको आप ना, मैं बता रही हूँ जमीन के साथ ऐसे इसी तरह होता है, बाहर ऐसे ही होता है। नट स्क्रूज डाल दें, कैसे कोई चोरी करेगा? सही। पक्का काम करना ना, जब पता है कि यहाँ मसले हैं तो फिर आप मुझसे मूवेबल बिन्स होते हैं ना। मुझे लग रहा है कि मैं कंसल्टेंसी शुरू कर दूं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो इदारों के पास हमारे हल नहीं है, मेरे पास कोशिश करेंगे हम कैसा उससे राब्ता करें, फिर आपको बताएंगे भी। आउटसेल विद नादिया मुझसे 365 राब्ता कीजिए। मैं हमने कराची की सफाई सुथराई की हमने बात की और हमेशा देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। एक मिनट सुन बोलने दो। जो इदारे हैं जिनको मसले आ रहे हैं ना, मुझसे आप राब्ता करें। मैं और जोहेब आपको मशवरा देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 365 न्यूज़ पे कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस। हर मसले का सलूशन हमारे पास है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कभी कभी होता है हमारे साथ कि जवाब निकलवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑनेस्टली। बिल्कुल ऐसे ये एक बहुत मुश्किल काम है। नहीं, लेकिन ये है कि हाँ वो तो ठीक है। मुझे होता है नाश्ता करना हमारा तो मुश्किल हो जाता है। हम तो जब आते हैं इतनी सुबह सवेरे उठ के तो कहाँ नाश्ता वाश्ता, बस जल्दी चाय वाय यहाँ आके पी लेते हैं और कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि नाश्ता आपने बड़ा टाइट करना चाहिए। ये पता है ना, क्योंकि दिन चलाने नाश्ते का भी एक मसला है। पता है कुछ लोगों के साथ कि जब वो नाश्ता ज्यादा करते हैं ना, तबीयत खराब होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि सुबह अगर नाश्ता करते हैं, ये बड़े कम शोज पे बात होती है, हेल्दी वेल्दी हैबिट्स एक जगह, लेकिन एक तबीयत भी इंसान की होती है कि जब बच्चे कुछ नाश्ता करके गाड़ी में बैठते हैं वो वॉमिट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मेरी अच्छा, मेरे बच्चों के साथ भी है, ज़ैनब के साथ ऐसे ही है। मेरी बेटी नहीं नाश्ता कर सकती थी, मैं बड़ी कोशिश की, लेकिन जब भी उसको नाश्ता दो तबीयत खराब, उल्टी हो रही है, गाड़ी रोको। तो ऐसे में क्या किया जाए? मिल्क, थोड़ा सा दूध, यानी कुछ तो देना चाहिए ना। एम्प्टी स्टमक आप जा रहे हैं स्कूल, कुछ बच्चे नहीं खा सकते सुबह उठ के खाली पेट एकदम, जब वो कुछ खाते हैं या वो किसी गाड़ी में सफर करते हैं, उनका नहीं सिस्टम ले पाता, तो उसके हिसाब जी जबरदस्ती ना करें। हर एक का सिस्टम फर्क है, तो इसलिए उनको ये आप जरूर साथ में कुछ दें खाने को, लेकिन जब उनका दिल करे, जब वो कर पाए। हेल्दी हैबिट्स बहुत जरूरी है, लेकिन कभी अपने सिस्टम के भी जो है ना बंदे पे डिपेंड करता है। जैसे मैं सालों से एक नाश्ता कर लूं और वो है चाय बिस्किट, बस ये ब्रेकफास्ट है आपका। मैं कुछ और खाती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मतलब मुझे ये होता है कि एक तो मेडिकेशन, एक तो थायराइड की दवा, ये भी बड़ा मसला है कि सुबह उठ के आपने फलां चीज पीनी है, अब वेट करो। उसके बाद अब जब आप थायरॉक्सिन लेते हैं ना, उसके बाद आधा घंटा वेट करो। तो मैं वेट करने का मतलब है कि मैं तो सुबह 3 बजे उठूं। बिल्कुल ऐसे है। तो ये कि हाँ नाश्ता क्या करना चाहिए और एक हेल्दी नाश्ता क्या होता है, और जैसे ऐसे लोगों की बात की जो सुबह उठते कुछ नहीं खा सकते, तो वो कैसे अपने दिन का आगाज करें। डॉक्टर नौशीन अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे जानते हैं ना कि इसका भी हल क्या है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं और ये तो पुरानी सेइंग है हमारे बुजुर्ग कि भाई ब्रेकफास्ट हैवी करना है, लाइक अ किंग। हाँ लाइक अ किंग, और उसके बाद फिर आप चाहे स्किप कर दे दोपहर का खाना, रात का खाना।
कहते हैं रात का खाना बहुत कम, बहुत थोड़ा, सादा रात के खाने। और मैं जो खूबसूरत तरीन लोग अपनी जिंदगी में खवातीन देखी हैं, ये वो हैं जो रात को डिनर नहीं करती। रात को डिनर नॉट आफ्टर 6। जी सॉरी डॉक्टर साहब बताइए, हैं डॉक्टर साहब कहेंगे क्या है भाई नाश्ते का क्या है ये सिलसिला? अरे तो पीछे ही बैठी है हमारे। हेलो, इधर ही बैठी है। आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अच्छा, लग रहा है हमारा बीपर ले रही है। सो बेसिकली बसारी आपका कॉन्वर्सेशन सारी सुन रही थी और उसमें बिल नादिया ने बड़ी सही बात की कि आपको नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए और आपका जो खाना है रात का खाना वो गुलाम की तरह कहते हैं होना चाहिए। बट अभी जैसे बात हो रही है कि हमने खाना क्या है और क्यों, कि बिल्कुल सही है, बहुत से बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको सुबह दूध अगर आप दे देते हैं तो वो उनको एक तो मोशन सिकनेस होती है गाड़ी में बैठते के साथ ही, और साथ में ये होता है कि उनको दूध हजम नहीं हो रहा होता, तो दे इधर कंप्लेन कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है या नौजिया हो रहा है या वॉमिट की सूरत महसूस हो रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको हमें देखने में आता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही इतनी है। प्यारी आवाज आ रही है डॉक्टर साहबा कि मैं अच्छा। बस कहूंगी गाना राइज सुना एंड शाइन कर रही हैं आप बिल्कुल। दें। ब्यूटीफुल, थैंक यू। बस ठीक है, बस यही मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है। अच्छा, सो नाउ अब हमने करना क्या है? देखो, क्योंकि बच्चे ओवरनाइट भूखे होते हैं और अगर वो खाली पेट चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो अगेन 10 या 11 बजे जितने भी लंच ब्रेक हो रही है, दे आर एम्प्टी स्टमक, दे वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क और अपना सारा क्लासरूम, तो वो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो हम ये कर सकते हैं कि लाइटर कोई ब्रेकफास्ट हो जो कि हम उनको डाइजेस्ट इजीली हो जाए, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स कम हो, मक्खन बहुत ज़्यादा ना हो या मलाई ब्रेड पे लगा के हम दे देते ना, ये चीज़ें ना हो। आप कोई जिस तरह नादिर ने मेंशन किया, वी कैन हैव सम नाइस रस्क और बिस्किट्स, है ना? ठीक। वो आप बच्चे को दे दे, बड़ों को बिल्कुल भी आप दे उनको दें। दे सकते हैं, वो नाश्ते में अपनी ले लें और साथ में आप कोई जूस बना सकते हैं, दे सकते हैं, फ्रूट भी आप उनको दे सकते हैं। जनरली ये बच्चों की मैं आइडियाज आपको खाई ना दे रही लें हूँ, बच्चे fruit। ताकि वो उनको इरिटेट ना करे। हाँ, इरिटेट नहीं, फ्रूट ये है कि जनरली जो उनकी पसंद का फ्रूट है आप वो दे सकते हैं, बच्चे लेकिन तंग बड़े भूखा करते पेट हैं भेजना भी मुश्किल फ्रूट होता है। पे। कुछ बच्चे बहुत तंग करते हैं और आप हमारे बच्चों का तो ये कि जबरदस्ती कुछ नहीं खा के देखो, ये फौरन बाहर, अब उल्टी साफ करो भाई, वो एक अलग मसला है। तो वो फोर्स भी उनको करना मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है। इसीलिए ऐसी चीज हो कि वो इजीली डाइजेस्ट कर लें और वो उनको मोशन सिकनेस या उनकी जो नौजिया उसको एग्रीवेट ना होने दे। लेकिन आपको पता है नादिया, हम बाबा फ्रूट का नाम लेते हैं, जनरली अब एक नई रिसर्च आई है उसमें कहते हैं कि सुबह खाली पेट फ्रूट नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं तो अरे एप्पल खाता हूं, शुक्र एक है। एप्पल खाता हूं खाली पेट में। नहीं, ये मेरे साथ मेरी, अब आप यकीन करें, मैं बड़े स्टाइल में, मैंने कहा ब्रेकफास्ट मैंने फ्रूट लेना है, मैं सुबह फ्रूट खाती हूँ, मेरी आवाज बंद हो जाती है, मेरे ये तो गले मैं में तो दर्द शुरू हो काफी जाता अरसे है। से कर रहा हूं, मैं तो काम एक एप्पल लेता हूं मैं। हाँ, ये एप्पल खाते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन ये हर एक को गलत है सूट ये। नहीं करता। और मैं आपको इसकी रीजन दे दूं। जी जी। और मैं इसकी 2 रीजन है। एक तो आपको जो आपका ओवर एसिडिटी है, पेट खाली है आपका, ठीक है, तो वो समटाइम्स इट ऐड टू योर एसिडिटी, वो चीज है। सेकेंडली, आप जब खाते हैं फ्रूट मीठा तो वो आप एकदम से आपके शुगर लेवल्स राइज करते हैं, और वो जिन लोगों को इंसुलिन सेंसिटिविटी है या जिनको प्री डायबिटिक हैं या जो हाइपोथायराइड हैं, तो ये चीजें उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, यानी उन लोगों के लिए। वैसे ओवरऑल अगर बात करें, ये फॉर्मूला हर एक पे नहीं अप्लाई करता। हाँ, हर एक बात पे ये है, और ये कि कुछ लोगों का ऐसा है कि जो मुझे लगता है डॉक्टर साहबा, कुछ लोगों के ना, जो बच्चे हों या बड़े, सोने के 2 घंटे के बाद पेट कुछ ले पाता है, बिल्कुल कभी सही किसी है, के ऐसे ही 4 घंटे के बाद पेट कुछ बर्दाश्त कर सकता है, एकदम सुबह उठ के हर बंदा या बच्चा नहीं कुछ खा सकता। जरूर उनका अपना सिस्टम है, आप उसको पुश नहीं कर सकते, वो उनका निजाम है। बिल्कुल। ये नहीं कि वो बच्चे की आदतें बुरी हैं या वो माँ की निजाम है, तबीयत दूसरा ये खराब कि है, हाँ। वो उसका एक अपना ये हो है ना, ये हो सकता है कि उसका सिस्टम ऐसा हो, उनसे नहीं खाया जाता। लेकिन सुबह प्रॉब्लम माँ बाप के लिए होती है ना कि स्कूल भेज रहे हैं वो, अब स्कूल में बेइज्जती- ब्रेक बाद में आ रही है। बेइज्जती होती है हाँ। लिटरली। हमें टीचर्स भी आके कह रही होती हैं, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट। भी हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं, लेकिन बच्चे का वो पेट ही रिफ्यूज कर देता है, तो हम क्या करें भाई।
उसमें आप ये कि बच्चों को ना आपने जो लंच देना है ना जो उन्होंने स्कूल में खाना है वो हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि फाइबर का कंटेंट सिर्फ सैंडविच हो गया या चीज हो गई, कोई चीज हो गई जो इजीली आप दे सकते हैं, कबाब हो गया, अंडा हो गया। सो अच्छा चलो नाश्ता नहीं करके आए बट जो मिड डे लंच ले रहे हैं स्कूल में, वो जो उनका ब्रेक है उसमें एटलीस्ट कोई हेल्दी चीज वो खाएं। आई डू नॉट इनकरेज डब्बे वाले जूसेस या पैकेट क्रिस्प जो है वो एम्प्टी न्यूट्रिएंट्स। चलिए बच्चों की तो बात हो गई, डॉक्टर साहब अब हम बड़ों की बात करते हैं ना। हमारे यहाँ तो रिवाज है कि लस्सी हो, हलवा पूरी हो और फिर जनाब पावे भी हो। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब मैं अपने मियाँ के साथ ना सैटरडे को हमारे आलू की कतलियां और पराठे वो फिक्स हैं। हाँ, तो वो हफ्ते ये को भी तो है ना भाई, ये नाश्ता तो फ्राइडे को कंप्लीट है। खुशी एक्साइटमेंट में हम लोग सोचते हैं कि सुबह पराठे होंगे, आलू की इसका क्या करें? ये हमारी ट्रीट होती है बट ओनली ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स, उसके अलावा नहीं। तो that's only once a week, right? Once a हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है कि रोजाना का नाश्ता इज ऑल अबाउट पराठा और मीठी लस्सी भी उन्होंने इतनी चीनी मिला देते हैं और पूरी वो सारा ये जो पूरी nutrient value है वो जीरो मुझे तो एडिबल ही नहीं लगती। ये जो मतलब घर आती है जब तक तो वो एक रबड़ बन जाता है मैदे का। मैं पता नहीं बचपन में हम कैसे खा लेते थे, अब मैं उसको देखते भी मेरी तबीयत खराब होती है कि इतना तेल, इतना रबड़, इतना मैदा। अच्छा रोटी, यानी आप क्या कहेंगे, आपके जहन में आइडियल नाश्ता क्या है? आप और ये बताइए पूरी हेल्दी पे पहले तो बताओ, पूरी पे बात हो रही है, पूरी हेल्दी है या खतरनाक है बताएं? No, puri is not at all healthy. I'm sorry. It has all the unhealthy fats जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और वो ऐसा फैट है जो आपके बॉडी में भी अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा और जज्ब हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा आपकी आर्टरीज पे। तो आप वैसे ही हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में इतने आगे हैं, डायबिटीज में इतना आगे हैं, तो ये हम खुद ब खुद ही अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये चीज हम और बढ़ा लें। लेकिन वो गरम गरम जो पूरी आती है। अच्छा मुझे आइडियल नाश्ता आपके जहन में क्या है? आप क्या ब्रेकफास्ट करती है? आइडियल नाश्ता बिल्कुल आइडियल नाश्ता। सबसे पहले क्या है कि आपने न्यूट्रिएंट पे फोकस करना है और आपने फाइबर पे फोकस करना है। अब न्यूट्रिएंट किस तरह आपको मिल सकते हैं? देखिए लीन प्रोटीन्स का मतलब ये नहीं कि सुबह एक स्टेक आप खा रहे हैं तो ठीक है, अंडा किसी भी फॉर्म में अंडा आपने ले लिया, दही आपने ले लिया, क्या कहते हैं आपका प्रोटीन, अंडे से एलर्जी कोई बात मेरा नहीं, बड़ा आप मसला है। योगर्ट से क्या ले मसले, सकते हैं। क्या मसले हैं, क्या मसलों के हल बताएं। अंडा नहीं खा, इसका सारी जिंदगी नहीं खाया, मेरे लिए तो यही नाश्ता इसलिए एक चलो टेंशन ही है। अच्छा अंडा ले, आप नहीं खाती, हम खाते हैं। आगे हर डाइट प्लान है मेरे आता है, सुबह एक, दोपहर को ये। मैं कहा अब जब मैगी नहीं खा सकती तो हर डाइट फेल हो जाती है। नहीं आप बताएं डॉक्टर साहब, छोड़े इनको, इनके मसले और निकल आएंगे। कबाब मैं खाती हूँ, लेकिन इस दफा रजिया बाजी ने जो नमक डाल दिया ना मेरे कबाबों में जो घर में बने, अब रजिया बाजी का मसला आ गया। वो एक का मसला कुछ सॉल्व हुआ, रजिया बाजी आ गई। रजिया बाजी को ऐसा करते हैं, नौकरी से रजिया बाजी को एक अल्टीमेटम देते हैं कि अगली दफा अगर नमक ज्यादा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरा उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। वो जितना भी नमक डाल ले मैं उनके बगैर नहीं चल वो आइडियल नाश्ता रह गया था, थोड़ी क्या रह गई चीजें रह गई, कुछ अंडा हो गया, एक तो एग हो गया। और हाँ और बड़ों के लिए आइडियल नाश्ता ये कि अगर आप दलिया लेते हैं और दलिये में आप थोड़े से नट्स डाल लेते हैं या आप फ्रूट डाल लेते हैं और दूध जो है, चेरीज है, बेरीज हैं, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। और दूध जो है आप कोशिश करें कि बगैर मलाई वाला इस्तेमाल करें, तो इट्स अ फुल मील। नहीं है हम ब्रिज के इस पार वाले, हम ब्रिज के इस पार वाले, ये आप क्या दलिये की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा? मैं बताऊं, दही जब तक पराठे नहीं होंगे और उसमें घी नहीं लगा होगा रोटी पे और अंडा, ऐसे कम हुआ है। मुझे लगता है कुछ सालों में ना ये हैवी चीजें कम हुई हैं। अब देखिए दही में डाले ओट्स, पकाने का कुछ जरूरत नहीं है, योगर्ट ओट्स डाले ग्राइंड करके, साथ में थोड़ा सा एप्पल छोटा मोटा, क्या नाश्ता है, हल्का सा हनी ड्यू लाइक हनी। भाई भिंडी तली हुई हो, उसके साथ गर्म रोटी आ रही हो और चाय का कप हो, क्या बात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, तो चलती रहेंगी नाश्ते की बात। बच्चों का फिर भी, लेकिन ये बात समझने की, हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, पेरेंट्स को भी, माओं को भी, आसान नहीं होता। कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, उनको खिलाना जिस टाइम पे आप चाहें, इसका आदत से, परवरिश से भी एक हट के कनेक्शन ये है कि उनका सिस्टम नहीं ले पाता। सिस्टम अगर आप ये समझ, अच्छा होता क्या उसमें, वॉमिट करता है बच्चा, फिर आप और गुस्सा आता है आपको, होता है ना ऐसा, फिर आप कोई चीख भी रहा होता है अपने बच्चों पे। अच्छा, और कुछ बच्चे, अच्छा मेरा तो बचपन में इख्तलाफ होता था, हमारे एक अंकल मार के ना बच्ची को अपने खिलाते थे, खत्म करो। अब बच्ची का पेट इतना है, वो नहीं पूरी रोटी खत्म कर सकती, तो आपने क्यों इतनी बड़ी रोटी बना के बच्ची को खत्म कराना है, उसको खाना। बिल्कुल, उससे ना मैं दहल गई थी। मैंने कहा था मैं ये काम अपने बच्चों के साथ कभी नहीं कहूंगी, जितनी भूख है उनको थोड़ा दो और बस उतना ही खाएं। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर राजस्थान में, ब्रेक के बाद हम वापस। डोंट फोर्स फीड चिल्ड्रन, कीप वॉचिंग।
बैक आफ्टर द ब्रेक और कुछ और चीज को भी वेलकम बैक कहना चाहिए, वो yes. हमारा ओवरसीज का Overseas सेगमेंट पाकिस्तानी। जो कहाँ रह गया था, पता नहीं कहाँ रह गया था, कहीं गुम सा हो गया था। हमने कहा दोबारा भाई ओवरसीज पाकिस्तानी से कनेक्ट करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी वो हैं जिनके जो रहते तो पाकिस्तान से दूर हैं, लेकिन पेटियां उनके उनकी दिल- यहाँ हैं, सामान यहाँ रह गया, दिल- उनके गद्दे, हाँ। उनकी रजाइयाँ, उनके बर्तन हाँ। यहाँ हैं। दिल उनके पेटियों में रह गए। जी हाँ, और जो बुजुर्ग हैं बेचारे वो उसकी जो है ना चौकीदारी कर रहे हैं, सफाइयाँ करवा रहे हैं, लेकिन बड़े तंग हैं। चलो जी, बहुत अरसे बाद हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज को एक बार फिर, तो इरम शरीफ हमारे साथ है, यूएई से इन्होंने में ज्वाइन किया है। पाकिस्तान में इनका ताल्लुक गुजरात से है, टीचिंग भी करती रही है, लेकिन अभी हाउस वाइफ। अरे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आई एम फाइन। इरम, थोड़ा सा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। कब से हैं, क्या कर रही जी। हैं दुबई में? बेसिकली आई एम फ्रॉम, एज आई टोल्ड यू, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और मैं पिछले 5 साल से जो है वो दुबई में हूँ, और पाकिस्तान बस आना जाना लगा रहता है क्योंकि इन लॉज वगैरह और सब वहीं पे होते तो हैं। आप आई क्यों पाकिस्तान? And, आप जॉब की वजह से, आपके हस्बैंड की जॉब? अब ऐसे तो फैमिली में भी बताएं। हाँ जी, हस्बैंड की जॉब की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि वो पिछले 10 साल से यहीं पे हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट। सो बस इसीलिए उनको यहाँ पे मूव होना पड़ा। सही, ठीक आ आ गया गया, तुसी ठीक आ गया। माशाल्लाह, फिर तो लाइफ सेट है भाई, जबरदस्त। आप भी काम कर रही हैं इरम? नहीं, अब क्यों काम? पैकेज नहीं, अच्छा मसरूफियत अच्छा, के लिए, मसरूफियत के लिए, मतलब ठीक। why हाँ, not? बताएं। अभी तो इस तरह से फिजिकल जॉब तो नहीं है, बिकॉज आई हैव अ 3-year-old किड, और उसको मुझे लुक आफ्टर करना होता है घर पे, सो दैट्स व्हाई फिजिकल तो जॉब नहीं करी। बट आई एम वर्किंग विद अ यूएसए बेस्ड कंपनी जो कि डिजिटली काम करती है, और घर पे बैठे हुए हम लोग ऑनलाइन ही डिजिटली उन क्या काम बहुत करती अच्छी है? बात है, क्या बहुत काम अच्छी करती बात है है। कंपनी? बिल्कुल काम करना हाँ जी। चाहिए। अब तो फ्रॉम होम, आप वर्क फ्रॉम होम, इतना ऑप्शंस हैं। काम क्या करती है आपकी? आप क्या काम करती हैं उसमें? Basically, it's a USA-based company which deals with the health and wellness-based products. Products-based company है ये, और हम digitally अपने clients को approach करते हैं through different social media platforms, और उनको approach करके उनकी जो कुछ problems होती हैं, उनकी skin related और health related जो basic issues होते हैं, तो उनको हम जो है वो आ गई ना sort बात out वहीं पे। करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, मतलब स्किन Skin केयर है या related। मेकअप का भी है कि मैं कुछ और बात करूं? मेरे मतलब क्या है, सामान प्रोडक्ट्स हैं उसमें। तो बताओ मुझे क्या skin care चाहिए? products हैं, इरम, मुझे क्या चाहिए? hair मुझे care किस चीज products की हैं। जरूरत है? बताओ जरा, मेरा फाउंडेशन खत्म हो रही है, बताओ भाई मुझे क्या आपको तो चाहिए? बेसिकली माशाल्लाह से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह यू आर फिट एंड फाइन थ्रू लाइक आपकी स्किन को अगर देखा जाए वो भी ऐसा बहुत कुछ भी अच्छी नहीं है, और फिजिक को देखा जाए तो दैट इज आल्सो वेरी गुड। लाइक माशाल्लाह आप भाई, fit माशाल्लाह। हैं। थैंक यू सो क्या मच इरम, बात आपने है। कब हुई थी इससे पहले आपकी नादिया से बात? मेरा ख्याल है शायद अभी 1-2 घंटे पहले हुई नहीं होगी। नहीं, अब जाऊंगी मैं दुबई, तो खास मैंने मिलना है इनसे, हाँ कंसल्टेशन वहाँ लूंगी। Most welcome, अच्छा most मुझे बताओ welcome। इरम, ये दुबई में कितना एक्सपेंसिव है बच्चे की स्कूलिंग, वहाँ ग्रोसरी वगैरह? अभी कुछ अर्से में आपको लगता है कि जितना भी मियाँ का अच्छा पैकेज हो, आप भी कमा रही हैं, लेकिन वैसे कितना एक्सपेंसिव हो वगैरह, गया ये सारी लाइफस्टाइल, खासतौर पे पढ़ाई, रेंट पढ़ाई? ऑब्वियसली बिकॉज दुबई अब एक तरह से आप समझे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मेन हब बनता जा रहा है, और पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई रेंटल प्राइसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं, और एजुकेशन जो है वो तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी एक्सपेंसिव है दुबई की, बिकॉज हमारी फैमिली में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक मेरे खाला मामू लोग, वो शुरू से यहाँ पे रह रहे थे, लाइक पिछले 25-30 साल से वो यहाँ पे थे। तो इस वजह से हमें आइडिया है कि पहले भी एजुकेशन एक्सपेंसिव थी, बट अब तो जो है वो, क्योंकि हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह के मुल्क से लोग आ रहे हैं अपने बिजनेस को, क्योंकि टैक्स फ्री, एज यू नो, टैक्स फ्री कंट्री है। सो इस वजह से जो है वो एजुकेशन तो बहुत एक्सपेंसिव बहुत है, expensive तो है, वो बिल्कुल। काफी यहाँ के भी मुश्किल पूछें हो पेट जाता है। गुजरात कब आना? गुजरात आना कब हो रहा है? क्या रह गया गुजरात में? क्या वो जो सामान छोड़ा आपने, क्या क्या है? उसको हवा लगवाएं हम हैं, बाहर निकाल के हवा लगाएं? बहुत है वहाँ पे, तो इस वजह से इतना मुश्किल नहीं होता। वो ये है कि उनसे मिलने के लिए ही है, आफ्टर 6 months और 1 year जो है वो जो visit रजाइयाँ करना नहीं, है। जो रजाइयाँ छोड़ वो के जो गई हैं, पेटियों का सामान उसमें है, फिनाइल की गोलियां उसकी बात रखवाई हो हैं, रही रजाइयाँ रजाई दी में नहीं हैं। थी, मेरी अम्मी ने मुझे वो आपका रजाइयाँ दी जोड़ा, नहीं थी। शादी का जोड़ा। अरे वो डिनर सेट ऐसे Dinner पड़े set। हैं ना, ग्लास हैं जी, और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो पता नहीं अब कब बनेंगे। वो लेकिन अम्मी को कहा हुआ है कि इसकी देखभाल करनी है, पेटी के आसपास कोई ना आए। कितनी पेटियां छोड़ के गई हैं, चलें ये बताएं?
कितना सामान छोड़ नहीं, के मुझे गए? अम्मी ने पेटियां दी नहीं थी। आपका सामान कोई पड़ा हुआ है वैसे वहाँ चलें सूटकेस में? नॉर्मली जो रूटीन में यूज होने वाली चीजें हैं बस वही जो है वो ली थी और अम्मी ने दी थी, क्योंकि जाहिर है अगर खुद आपने अब्रॉड चले जाना है तो पीछे उनको जाया करने का तो कोई फायदा नहीं है, तो वो उस माइंडसेट से जो है वो बस ये किया था कि उतना ही सामान हो कि आपने जो कजन आपके में मेरा personal ख्याल use बांट में दिया आ जाए। जाने से पहले आपने कहा कि अम्मी कजन को दे दे मेरी दे दे जिसको देना है सामान, मैं नहीं रखूंगी। अच्छी बात है, जमा नहीं हाँ, देनी चाहिए। सही है जी, तो बहुत- कब बहुत आएंगी आप? जबरदस्त भाई, बहुत आती कब शुक्रिया। हैं? पाकिस्तान कब आती हैं? गुजरात कब आएंगी? बताएं जरा, मेरी भी फुप्पो रहती हैं वहाँ। अभी नेक्स्ट आगे 1 मंथ के बाद जो है वो इंशाल्लाह प्लान है आने का। चलें, बस मैं आपको चलें, अपनी good फुप्पो से कनेक्ट करूंगी इंशाल्लाह, राब्ते में रहिएगा। भाई रब बहुत शुक्रिया जी, आपने thank वक्त you। दिया और काफी अरसे बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जिससे हमारी बात हुई। बहुत शुक्रिया रम, शुक्रिया। थैंक जी यू। तो ये लाइट सा हमारा हो जाता है ना, मजा आ बहुत- जाता है। इसमें कुछ अर्से से ना बहुत हेवी न्यूज़ ऐसे ही सारी है। जंगें, डेवलपमेंट, मुझे पेटियों की बात याद आ रही थी आपकी कि यार सीरियस आपको हो गया कितना पता है? हाँ ये मुझे 2 महीने में ना 2 लाइनें पड़ गई हैं मेरी दिमाग से, रिंकल्स आ गए हैं, टेंशन इतनी रही है। अच्छा जी, न्यूज़ राइज के एंड शाइन का सामने। वक्त खत्म हो गया है। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए। मैं भी आऊंगी थोड़ी देर के लिए खुदा हाफ़िज़।